نیا ہیلتھ کلچر متعارف۔ ہر سرکاری ہسپتال کی روزانہ صفائی کی جا رہی ہے۔ ہسپتالوں کے داخلی راستوں، راہداریوں اور تمام وارڈز کی بھرپور صفائی، جبکہ ہسپتالوں کی ڈیپ کلیننگ کی وجہ سے انفیکشن کے امراض میں واضح کمی آئی ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں، یورپی معیار پر ہسپتالوں کی ڈیپ کلیننگ کی وجہ سے متعدی امراض کے پھیلاؤ میں کمی بھی ممکن بنائی جا رہی ہے۔ حکومت پنجاب کا نیا ہیلتھ کلچر اور ہر سرکاری ہسپتالوں کی روزانہ صفائی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہسپتالوں کے راہداریوں اور تمام وارڈز کی بھرپور صفائی بھی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ہسپتالوں کی ڈیپ کلیننگ کی وجہ سے انفیکشن کے امراض میں واضح کمی آئی ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں، یورپی معیار پر ہسپتالوں کی ڈیپ کلیننگ کی وجہ سے متعدی امراض کے پھیلاؤ میں کمی ممکن بنائی جا رہی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، حکومت پنجاب کی جانب سے نیا ہیلتھ کلچر متعارف کروایا گیا ہے، جس کے تحت ہر سرکاری ہسپتال کی روزانہ صفائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ہسپتالوں کے داخلی راستوں، راہداریوں اور تمام وارڈز کی بھرپور صفائی بھی کی جا رہی ہے۔ براہ راست لیے چلتے ہیں آپ کو اسپیکر پنجاب اسمبلی کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کے اجلاس جاری ہیں۔ دوسری جناب اسپیکر، میں ایک پروگرس ان کے آج نہ ہمارا اپنا فنانس منسٹر ہے، نہ وہ منسٹر صاحبہ ہیں۔ سر، مڈ ٹرم ڈیولپمنٹ پروگرام، آپ تو ماشاءاللہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، یہ شاید سمجھتے نہیں ہیں۔ آ کے انہوں نے اللہ کے ناموں کے نیچے بھی آ کے جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ میں نے فنانس منسٹر کو کہا تھا کہ یہ میرے دیکھیں بات سنیں جی، آرڈر ان دا ہاؤس۔ اجاز، آپ ایک بڑے سمجھدار آدمی ہیں۔ دیکھیں، یہ کہنا کہ کوئی ان حرمت والے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹ بولتا ہے، اس سے بڑی زیادتی کسی کے سر کل کہہ کے گئی ہیں منسٹر صاحبہ، کل منسٹر صاحبہ کہہ کے گئی ہیں۔ اگر میرے بیٹھے کہتی تو میں روکتا۔ دیکھیں، میرے بیٹھے آپ کہیں گے میں روک دوں گا، اگر وہ کہتی میں ان کو بھی روک دیتا۔ آئیے دیکھیں نا، یہ آپ دیکھیں، میں نے یہ ایسے ہی ہے کہ میں نے کسی کو کہنا ہو اسمبلی کے فلور پہ، اگر میں نے کہنا ہو تو میں انہیں کہوں گا میری بات سن لیں ذرا، میں صرف ایک بات کہوں گا۔ اگر میں نے کہنا ہو تو میں کہوں گا غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، ایک بات، یا میں کہوں گا کہ دروغ گوئی کر رہے ہیں۔ جب میں یہ کہوں گا نا جھوٹ، تو جھوٹ لفظ ایک گناہ کے زمرے میں ایسے آ جاتا ہے، اور پھر آپ اللہ کے نام کے نیچے کھڑے کر کے تو ان کو بالکل ہی گناہ زدہ کر دیں گے۔ جی وہی میں کہہ رہا ہوں نا، تو اس کو ایسے نہ کریں، تو پتہ نہیں جھوٹا کون ہے، میں تو منصف نہیں ہو سکتا نا، یا آپ کے حقائق جھوٹے ہیں یا کسی اور کے جھوٹے ہیں، کوئی تو پھر مجھے ڈٹرمن کرنا پڑے گا۔ اسپیکر، منسٹر صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا تھا۔ میں آپ اچھی باتیں کر لیے، گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں جناب اسپیکر، کہ ایلوکیشن انہوں نے 1,36,400 کی رکھی تھی، اور اس دفعہ ساری 75,000 ملین کی آ گئی ہے۔ جناب اسپیکر دیکھیں، ہاف آف کٹ ہو گیا ہے۔ کس چیز میں؟ ان کی ڈیولپمنٹ کی، جی ڈیولپمنٹ کا جو ان کا مڈ ٹرم ڈیولپمنٹ فریم ورک تھا نا جی، جو انہوں نے ایلوکیٹ کیا تھا کہ 26-27 میں ہم کتنی رکھیں گے، وہ رکھی تھی 13,64,000 ملین، اور اب اس سال جو رکھی گئی ہے وہ 75,000 7.5 لاکھ رکھی ہے، یعنی کہ ہاف کٹ آ گیا ہے۔ مطلب یہ ہے جناب اسپیکر کہ ان کے فگر جو ہیں یہ جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ نمبر 2 جناب، اگر ہم سپلیمنٹری، میں ضرور چاہوں گا کہ فنانس منسٹر جب کلوزنگ کریں تو اس کا جواب ضرور دیں کہ ان کے یہ ڈاکومنٹ جھوٹ بول رہے ہیں یا یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور دوسرا جناب اسپیکر، سپلیمنٹری بجٹ میں پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب یہ نوٹ لے لیں، کیونکہ میرے مشاہدے میں جو تقاریر میں نے سنی ہیں، جو اجاز شفیع صاحب کہہ رہے ہیں وزیر خزانہ کے پاس اس کا بڑا مؤثر جواب ہوگا، آپ نوٹ لے لیں اس پوائنٹ کا۔ میں یہ دے دوں گا اس طرح ڈاکومنٹ۔ اچھا جناب اسپیکر، پولیس کے لیے 41 ارب روپیہ رکھا گیا ایکسٹرا۔ اب دیکھیں پولیس کیا کرتی ہے، پولیس صرف کرتی ہے کہ پی ٹی آئی ورکرز کے گھروں پہ چھاپے مارنے ہیں، پی ٹی آئی کارکنوں کو پکڑنا ہے، پی ٹی آئی کے اوپر ان کی ساری ایکٹیویٹی مانیٹر کرنی ہے، اور لا اینڈ آرڈر نہیں دیکھنا۔ ایک شرمناک اس کی مثال میں آپ کو دوں گا۔ صاحب کل کے لیے چلیں، آپ کے منہ سے نکلنا چاہیے، مجھے پتہ آپ کہہ لیں گے،
आपको पता है मैं बड़ी सीधी बात करूंगा, कल की जो मुहर्रमुल हराम की कल की पुलिस की विजिबिलिटी और कल का लॉ एंड ऑर्डर है, इतने इमिनेंट थ्रेट के बावजूद आप देखें तो सही कि कितना शानदार कल काम किया उन्होंने। सर वो एक दफा कह दें, सर एक दफा कह दें बस। सर मैं बजट की बात कर रहा हूँ ना, उसको तो हम कर रहे हैं अप्रिशिएट, कल भी किया था हमारे दोस्तों ने सर, बड़ी अच्छी बात। लेकिन मैं दूसरा बता रहा हूँ कि इनको इतने वो उस इवेंट को हम करते हैं, बाकी जो इवेंट बताए उनकी भी तो बात करना है, उनका भी तो जवाब देना है, वो जायज बात। इसका जनाब एक बदतरीन मिसाल मैं आपको दूंगा कि मियां असलम इकबाल साहब की वालदा की डेथ हुई, पुलिस का काम देख लें सर, इंतहाई शर्मनाक काम था कि उसके घर पे भी पुलिस का पहरा था सर, डेड बॉडी घर पड़ी थी और पुलिस के कोई 40-50 बंदे थे। जिस वक्त जनाजा हो रहा था जनाब स्पीकर, वहां भी कुछ 100 बंदा डिप्यूट था। जनाब स्पीकर जब वो कब्रिस्तान गए, उनकी तदफीन हो रही थी, वहां भी 8 पुलिस ऑफिसर जिनमें 2 इंस्पेक्टर खड़े थे। क्या पुलिस का काम अब यही रह गया है? क्या पुलिस अब इन कामों के लिए रह गई है कि एक हमारे ऑनरेबल मेंबर जो इस हाउस का है उसकी आप ओथ नहीं ले सके, दूसरा एक उसकी मां का जनाजा उसके घर जनाजा का और उधर खड़ी है, क्या पुलिस को ये 41 अरब रुपए हम इन कामों के लिए दे रहे हैं? एक काम तो आपने बता दिया, दूसरा मैं भी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, तारीख का जबर है। जी सर। मियां साहब एजाज शफी साहब ए जरा गल सुनिया जे, ए मेरी गल सुनिया जे, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ और ਉਦੋਂ ਦੇ 3 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ मैंने इसी ऐवान में ये उनको जाकर कहा, ये तारीख का जबर है कि जो आज असलम इकबाल साहब की वालदा साहब अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, असलम इकबाल हमारे भाई हैं, वो खुद नहीं आए ओथ लेने, सुन लेना। और तारीख का जबर ये है कि यही मुकदमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का है कि मेरी वालदा की मैयत पड़ी है और पुलिस के पैरे में पड़ी और मैं जेल में मुकैयद हूँ। ये तारीख। पंजाब असम्बली के इजलास जारी है, आगे बढ़ें। आपको बताएं कि वुमेन पार्लियामेंट का किसका इजलास ख़वातीन के हकूक़, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अमूर पर गौर, जबकि आपको बताएं कि इशरत अशरफ कन्वीनर वुमेन पार्लियामेंट कॉकस ने इफ्तिताही करामात भी अदा किए हैं। आसिफा खान डायरेक्टर पार्लियामेंट डेवलपमेंट यूनिट के इजलास के मकासद पर रोशनी डाली गई। शगुफ्ता फैसले में मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 में अज़दवाज जायदाद के हवाले से कानूनी हिस्से से मुतालिक तरमीम की तजवीज़ भी पेश की है। इस इजलास का अहवाल जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। बताइए हमजा। हमजा से भी इस बारे जानेंगे। आप बता रहे हैं कि वुमेन पार्लियामेंट कॉकस का इजलास ख़वातीन के हकूक़, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अमूर पर गौर किया गया है। इशरत अशरफ कन्वीनर वुमेन पार्लियामेंट कॉकस ने इफ्तिताही कलिमात भी अदा की हैं और आसिफा खान डायरेक्टर पार्लियामेंट डेवलपमेंट यूनिट ने इजलास के मकासद पर रोशनी भी डाली। शगुफ्ता फैसले मुस्लिम फैमिली लॉस ऑर्डिनेंस 1961 में अज़दवाज जायदाद के हवाले से कानूनी हिस्से से मुतालिक तरमीम की तजवीज़ भी पेश की है। आपको बता रहे हैं वुमेन पार्लियामेंट कॉकस का ये अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में ख़वातीन के हकूक़, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अमूर पर गौर किया गया है। जबकि इस इजलास में इशरत अशरफ कन्वीनर वुमेन पार्लियामेंट कॉकस ने इफ्तिताही कलमात भी अदा किए हैं। बुलेटिन में बात करेंगे कुछ मौसम की। तो नाज़रीन, मौसम के अहवाल कुछ यूँ है कि सूरज का पारा हाई है और गर्मी का राज बरकरार है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बाद में बरसने के कोई इम्कानात भी मौजूद नहीं है। सूरज का पारा हाई है, गर्मी का राज बरकरार है, जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा जान लेते हैं सामिया से। इसे बताइए सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर में गर्मी की लहर बरकरार है। शदीद गर्मी जो है वो बाहर महसूस हो रही है। सूरज भी अपनी किरणें ज़मीन पर बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है। अलबत्ता शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। फील्स लाइक टेम्परेचर जो है वो 47 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बाहर महसूस किया जा रहा है। ताहम अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहम महकमा मौसमियात के दादोशुमार
के मुताबिक ताहाल बाहर हवा की रफ्तार जो है वो महज 6 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, मगर हल्की रफ्तार से हवाएं तो चल रही हैं, मगर साथ ही साथ जो है वो हब्स की जो शिद्दत है वो भी बाहर बरकरार है, क्योंकि मानसून सीज़न का जो है वो आगाज़ हो चुका है। तो शहर लाहौर में जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में हब्स की जो शिद्दत है वो इसी तरह ही महसूस की जाएगी। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज दिन भर शहर का मौसम खुश्की रिकॉर्ड किया जाएगा। अलबत्ता रवां हफ्ते जो है वो शहर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बूंदाबांदी के इम्कानात जो हैं वो ज़ाहिर किए गए हैं, मगर आज लाहौरियों को जो है वो ना सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी जो है वो गर्मी का एहसास महसूस किया जाएगा। ताहम शहरियों को यही कहा जा रहा है कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें, कोशिश करें कि इस गर्मी के मौसम में ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया सामिया। नाज़रीन, सख्त गर्मी में शहरी ने गन्ने के रस के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। शहरी गन्ने का रस पीकर गर्मी भगाने लगे हैं और कहते हैं गन्ने का रस जिस्म को तवानाई बख्शता है। उनकी जानिब से मज़ीद क्या कहा जा रहा है, बता रहे हैं मोहम्मद आकिब। आके बताइए। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में इस वक्त सूरज जो है वो आग बरसा रहा है और लाहौर जो है इस वक्त सख्त गर्मी की लपेट में है, जिसकी वजह से शहरी भी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हबस की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा दिन ब दिन हो रहा है और इस वक्त टेम्परेचर की बात करें तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि 45 डिग्री सेंटीग्रेड फील्स लाइक है और 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा जा रही है। लाहौरियों के लिए गर्मी जो है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको भगाने का तरीका भी उन्होंने ढूंढ निकाला है। अपने कामों के लिए जाते हैं या मिलने जुलने के लिए जाते हैं, उसके लिए जो है वो ठंडे जूसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं इसी तरह एक गन्ने की जो है वो जूस की शॉप पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अच्छा खासा रश है और लोग जो आते जाते हैं यहाँ पर रुक कर जो है वो गन्ने का रो पीते हैं और गर्मी को भगाने की कोशिश करते हैं। लोगों से बात करते हैं, शहरियों से बात करते हैं कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। मज़ीद उन्होंने क्या तोड़ निकाला है इस गर्मी का। सर सही का गन्ने का रो पी रहे हैं, क्या कहते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है लाहौर। सर गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा है, आपके सामने ही है, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो करना है ना अपने आप को बचाने के लिए। जिधर ठंडा पानी नहीं है बिल्कुल ये तवानाई पूरी करता है गर्मी से। जैसे हम मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी करके आए हैं, तो सबसे पहले ये नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। आप देखेंगे लाहौर की आज की गर्मी बता रही है आपको कि बहुत गर्मी है। आज का टेम्परेचर 40+ ही होगा, बहुत गर्मी है। जैसे ये पियेंगे ठंडा, जितने ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करें तो ठीक रहेंगे, तमाम हो रही है। जी बिल्कुल, ये आपने शहरियों के तासुरात सुने। उनका कहना था कि अगर ठंडे जूसेस या रो वगैरह नहीं पियेंगे तो वो अपना काम नहीं कर सकते। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि लाहौर में जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी भी है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया आकिब। और नाज़रीन, पंजाब कॉलेजेस के तालिबा जीना अली ने आर्मी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोस्टन अमेरिका में 13 से 18 साल की उम्र के तलबा ने हिस्सा लिया, जहां साइंसी तहकीक, तनकीदी सोच और डेटा के तजिए की सलाहियतों का जायजा लिया गया। मुकाबले के तीनों मराहिल इंतहाई सख्त थे, ताहम जीना अली ने हर मरहले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फाइनल में पहली पोजीशन अपने नाम की। इस अहम कामयाबी पर उन्हें आलमी जामियात की जानिब से स्कॉलरशिप की पेशकश भी की गई है। तालिबा जीना अली का कहना है कि ये कामयाबी मेरे वालिदैन, असातिज़ा और पंजाब कॉलेजेस की मुसलसल रहनुमाई की बदौलत मुमकिन हुई। बहुत शुक्रगुजार हूँ सबकी, अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ जिनके फजल करम की वजह से मुझे ये पोजीशन हासिल हुई। अपने कॉलेज की शुक्रगुजार हूँ, अपने फैमिली की और सबकी जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। जीना अली के वालिद का कहना है कि हमारे खानदान के लिए बहुत खुशी और फख्र का लम्हा है। सारे घर वाले पंजाब कॉलेज के दिल की गहराइयों से मशकूर हैं और इन्होंने वैसे भी इसको बच्ची को स्कॉलरशिप दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी आसानी हुई है। इस पर हम एक बार फिर पंजाब कॉलेज के शुक्रगुजार हैं। पंजाब कॉलेज टाउनशिप कैंपस के प्रिंसिपल काजी शहजाद एहतशाम का कहना है, इब्तदाई टेस्ट कामयाबी से पास करने पर ही जीना अली को आलमी मुकाबले के लिए मुंतखब किया गया। हमें यूनिवर्सिटी की सर इन्विटेशन आई थी, हमने क्लासेस में अनाउंसमेंट करवाई, इनिशियल टेस्ट लिए और फिर ये बच्ची वाज़ेह तौर पर सामने आई कि ये टैलेंट रखती है और इसमें हमारा नाम रोशन कर सकती है। पहले इसने प्रीलिमिनरी मुकाबलों में शिरकत की, उसमें नंबर 1 आई, फिर सेकंड राउंड में भी नंबर 1 आई और माशाल्लाह और फाइनल राउंड में भी ये नंबर 1 आई है। जीना अली की ये कामयाबी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी नौजवान सलाहियतों में किसी से कम नहीं। मुनासिब रहनुमाई, मेहनत और मौका मिले तो वो आलमी सतह पर भी मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। जारी है, आपको राज ये चलते हैं। आप रोक नहीं सकते फिर सर, वो अनब्राइडल्ड, इट जस्ट वॉक्स द वे इट वॉक्स। सर तो आप जो भी लफ्ज यहाँ पर बोलते हैं सर, उसके मैंने एक दफ़ा कह दिया, मेरी बेटियों की तरह मेरी छोटी बहन है हिना परवेज भट्ट। सर आई नो द फैमिली लाइक इट्स माय ओन फैमिली।
सर मैंने उनसे कह दिया, स्पीकर कहते हैं कि मोअज़्ज़ज़ अरकान से कि आप मेरी तरफ देखें। उसके बाद माय टोटल पर्सोना वाज ब्लेमिश्ड। ऐसा ही सर। जस्ट मुझे उड़ा के रख दिया उसने। सर ऐसा ही। मैं तो एक लफ्ज बोलने से पहले डरता हूं क्या बोल रहा हूं। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि ये सोशल मीडिया फिर कुछ नहीं देखता सर, उस पर मेरे ऐसे ऐसे कैरिकेचर्स बनाए गए, उसमें उस बेचारी बच्ची के इतने इतने कैरिकेचर्स बनाए गए, उसमें ये किया गया कि ये हम अब पता नहीं यहाँ पे बैठ के किस किस्म की आपस में वो करते हैं। आप सब ने देखे। ऐसा ही। मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज बी केयरफुल इन अटरिंग व्हाटएवर यू आर अटरिंग। यही सर गुजारिश करनी है। इसके साथ और एक और फाजल कुलीग ने यहाँ ये बात भी की जोश में कि मैं नासा चों खून कढ़ांगे जो और फिर गोलियां चलावांगे। जनाब स्पीकर, मेरी सिर्फ सबमिशन ये है इसमें, जनाब उस वक्त आपने भी उसको बात को लिया कि हमें डराने वाली बात नहीं है। हम इस चीज़ों से एक मरतबा नहीं 3 मरतबा गुजर के इस हाउस में हमारे अक्सर दोस्त बैठे हैं। तो बात तो ये है कि जिस माइंड सेट के साथ आप ये बात कर रहे हैं और उसी माइंड सेट का विक्टिम है, तो इसको हमें डराने की बजाय अपनी सिमत दुरुस्त करें और अपने किरदार को, कंडक्ट को, अल्फाज को, और जब हम इस हाउस की हुर्मत और तकद्दस की बात करते हैं तो फिर ऐसे वक्त में ये लूली लंगड़ी जमहूरियत निज़ाम जो है, जो यहाँ हमें ये इस तरह की बातें करने का हक देता है, तो फिर कहीं एक पूरा बयानिया घड़ा जाता है कि ये लोग जो हैं ये इनकम्पिटेंट हैं, नाअहल हैं, निज़ाम की ख़राबी की वजह है। तो हम उनको मौका फराहम करते हैं कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो कैंपेन चलाई जाती है मुंतखब नुमाइंदों के ख़िलाफ़, हम अपने कंडक्ट से उनको वो मौका फराहम ना करें। हम मुहतात रहें और अच्छे पैराए में अपना मौक़िफ़ बयान करें, अपनी राय रखें। ये मेरी सबमिशन होगी कि ये इस ऐवान के लिए, हम सब के लिए और इस निज़ाम के लिए यही बेहतर है। जनाब स्पीकर, इस बजट दस्तावेज़ में एक हेड रखा गया जो है कौमी ज़बान के मतलब। जनाब स्पीकर, उसके लिए पैसे रखे गए। ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, ये 44.721 मिलियन है जनाब स्पीकर। अब मुझे नहीं समझ आती कि ये पैसे कहाँ खर्च करने हैं, इस कमेटी ने क्या काम करना है। ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 251 है जो आज तक अमल दरामद जिस पे नहीं हो सका। और यहाँ मेरा एक बिल जो है माँ बोली के हवाले से कई महीनों से वो इल्तवा का शिकार है और ये पैसे रखे जा रहे हैं और आज तक वो काम तो हमें कहीं नज़र नहीं आया कि ये कौमी ज़बान की खिदमत कहाँ हो रही है, ये पैसे कहाँ खर्च किए जा रहे हैं, ये इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का काम कहाँ हुआ है। हमें तो ये कहीं होता हुआ नज़र नहीं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि ईरान अमेरिका जंग के बायस तेल की सप्लाई मुतासिर हुई है और तेल की सप्लाई मुतासिर होने से महंगाई भी बढ़ी है। ऐसा कहना है वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और उनकी जानिब से गुफ्तगू में कहा है कि हुकूमत ने आलमी मार्केट में ईंधन की कीमतें बढ़ने के बावजूद रिलीफ दिया है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 160 रुपये फी लीटर कमी का फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल कर चुके हैं। रिकॉर्ड तेल की कीमतों की शक्ल के अंदर हर घर का जो बजट था वो डिस्टर्ब हुआ। अप्रैल के पहले महीने के अंदर डीजल की कीमत तकरीबन 520 रुपए के ऊपर पहुंच चुकी थी, जब बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर डीजल के फ्लैट्स का रेट 280-290 डॉलर, जिसकी सतह कभी तारीख के अंदर
میرے خیال سے اس دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ڈیزل کے اندر تقریباً 200 روپے کی کمی اور پیٹرول کے اندر تقریباً 160 روپے کی کمی ہم عوام تک منتقل کر چکے ہیں اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے, کیونکہ میرے قائد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ حکم کیا تھا کہ عوام کے ساتھ حقیقت بیان کرو, ان کی سمجھا کے ان کو بتاؤ کہ اگر وقتی تکلیف ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس رات کے بعد دن دوبارہ آئے گا اور وہی سارا فائدہ تمہیں منتقل عوام کو تم اسی تیزی کے ساتھ کرو گے جس پھرتی کے ساتھ قیمتیں اوپر گئی تھیں. تو ہم نے نہ صرف یہ قیمتوں کو گرایا بلکہ پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا کہ جو بین الاقوامی منڈی میں قیمتیں گری تھیں اس سے بڑھ کے 70-80 روپے کی گراوٹ پیٹرول کے اندر دی اور ڈیزل کے اندر بھی ایک بڑا ہم نے جو قیمت کا جو ریڈکشن تھی ڈیزل کی شکل کے اندر بھی دی. اور اس وقت جو ساری حکومت نے مل کے جو اسٹریٹ آف ہرمز سے جو ڈسٹریسڈ پیٹرول کے اور ڈیزل کے اور خام تیل کے پارسلز خریدے تھے, جو جہاز نکوالے تھے, ان کے اندر جو منافع کمایا ان کو بھی استعمال کرتے ہوئے بین الاقوامی منڈی سے کہیں زیادہ جو ریڈکشن تھی وہ پچھلے ہفتے میں دی. ایل پی جی معافی کی لمبی دہاڑیاں عوام کی خواریاں جاری. سلنڈر گیس کا 309 روپے فی کلو کا سرکاری ریٹ مذاق بند کرایا گیا ہے. بازاروں میں ایل پی جی دھڑلے سے 450 سے 500 روپے فی کلو تک بیچی جا رہی ہیں. ایل پی جی ڈیلرز اور دکانداروں کی پانچوں گھی میں سرکاری نرخ نامے ایک طرف رکھ دیے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں گھریلو گیس سرکاری ریٹ 309 کے بجائے 450 سے 500 روپے فی کلو تک فروخت. ہوٹلوں, ریسٹورنٹس, بیکری مالکان اور دکاندار بھی مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور. اخراجات میں نمایاں اضافہ. ایل پی جی 450 روپے کے جی پہ مل رہی ہے, جو کہ اس وقت صرف 200 روپے کے جی ملنی چاہیے. ہمیں اتنا ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے, اتنی زیادتی ہو رہی ہے کہ کسی چیز کا کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری ریٹ صرف کاغذوں تک محدود رہ گئے. کئی علاقوں میں تو نرخ نامہ بھی آویزہ نہیں کیا گیا. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری نرخوں پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے اور حکومت منافع خوروں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے. کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ عاطف پرویز, لاہور.